today the Hazrat Tipu Sultan Sharif death anniversary. The life of the ruler and the controversies around him. Tipu the Visionary, the 229th death anniversary of Tipu's martyrdom. Emperor Meiji is credited with making Japan a modern nation and putting it on the track to become a world power. A century before that, the king who could have been the Indian Meiji and kept India relevant as a world power died on the battlefield today as his 229th death anniversary. On May 4, 1799, the final battle after a series of 4 wars was concluded and we lost that chance with the death of Tipu Sultan of Mysore at the hands of the British, assisted by the Marathas, Hyderabad and Travancore. We should celebrate Tipu's courage as he famously rejected the advice to flee or surrender as his ally Napoleon did twice and instead chose to die protecting his kingdom and his people. He famously proclaimed that it was better to live as a tiger for a day than to live as a jackal for a century. Sadly, there are only a few among his admirers who focus on Tipu the Visionary. He was a brilliant general, a radical economic and social reformer, and a great geostrategist. With reference to the above, you have informed that, as per the restrictions laid down by the administration in the wake of COVID-19 pandemic, only 25 members of staff and committee are involving in the celebration of Hazrat Tipu Shaheed. Since the trustees, Mutwalis of Fateh Fund Committee, Calcutta and Tahir requisition cited at reference above have requested the board to provide accommodation and transportation the 8th generation lineal descendants of Hazrat Tipu Shaheed on the eve of 229th death anniversary of Hazrat Tipu Sultan Shaheed. Therefore, you are directed to provide the accommodation to the 8th generation lineal descendants of Hazrat Tipu Shaheed of Calcutta within the permitted 25 members positively. On this occasion, Sahib Zada S. Mansoor Ali at Tipu Hazrat Tipu Sultan Shaheed family member, descendant National President Tehreek-e-Khudadad was also present on the event. जी सर, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। तमाम रियासत अवाम और रियासत हिंदुस्तान के अवाम को बिलखुसूस ये मुबारकबादी दी जाती है। 233वां संदल शरीफ अमल में आया है, जहाँ पर कोविड रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इसी वारम में तमाम मसाजिद और दरबारों की इजाज़त सरकार देने के बाद कोविड के नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए 20 या 25 लोग, जिसमें संदल की ना प्रोसेशन रहा इस बार, ना ज़्यादा भीड़ रही क्योंकि लोगों के अंदर इत्तला कम थी, इसलिए मुख्तसर से लोग जमा होकर कुछ ख़दीम शख्सियत मैसूर के और हमारे ख़ानदान और कमेटी के अरकान। तारुफ करा दीजिए। जी, मैं साहिबजादा सैयद मंसूर हूँ। हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 7वें खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट तहरीक-ए-खुदादाद भी हूँ। और मेरा यहाँ पे विज़िट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑफिशियल विज़िट रहा, ख़ानदान का, मैसूर फैमिली वेलफेयर स्टेट का, जिसमें मैं थैंक्स करता हूँ हमारे मिनिस्टर आनंद सिंह साहब को और रियासत कर्नाटका और तमाम वक्फ बोर्ड के और CO साहब को भी। जी जी, पिछले ये लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं और पिछले उर्स में आपको क्या महसूस हो रहा है? लॉकडाउन की वजह से उर्स के ताल्लुक़ से जब बात की जाए तो बहुत फ़र्क हुआ है, क्योंकि आवाम हज़ारों की तादाद में आती थी शहीद आज़म को खुलूस पेश करने के लिए और संदल पेश करने। कम से कम 50 से ज़्यादा संदल शरीफ आया करती थी। कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, यहाँ तक दिल्ली और लखनऊ से भी टिपू सुल्तान शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम लोग आते थे। तो कोविड आने की वजह से बहुत सारा डिफरेंसेस फील हुआ और लोगों के अंदर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला माली हालत सही कर दे और जो लोगों को तकलीफ़ात हैं वो तकलीफ़ात से दूर करे, और जितने भी लोग मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मैसूर के हो या श्रीरंगपट्टन के हो या बेंगलोर के हो, अल्लाह ताला उनको तमाम दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान जिस तरीक़े से हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हमेशा कौल था, 100 साल गीदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना बेहतर है। यहाँ पर हर लहू के कोनों पर टिपू सुल्तान और नवाब हैदर अली साहब का लहू लगा हुआ है। आज शहादत का दिन है। लोग आज के दिन ये तय करें कि आने वाले दिनों के अंदर हमें किस तरह से मुस्तकबिल अपने लीडरों को चुने, किस तरह से मुस्तकबिल टिपू सुल्तान शहीद के असल चाहने वालों को आगे लेकर आएँ और नौजवान अपने जज्बात को काबू में रखते हुए
आने वाले दिनों के अंदर अपना मुस्तकबिल तैयार होने के लिए तैयार हो करके मेरा एक छोटा सा अदना सा मैसेज है। आज बस एक उर्स था, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कोई भी आए। फातिहा खानी हुई, लेकिन यहाँ की कमेटी बहुत सारे इंतजाम कर सकते थे। कोविड के नाम तो रहने के बावजूद भी तमाम बारगाह के उर्स से संदलें हो रही है। गरीबों के लिए तकसीम हो सकते थे, वही पैसे बचत होकर गरीबों के लिए बहुत सारे सुविधाएं यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टन और गंजाम में कुछ लोग हैं उनके लिए व्यवस्था हो सकती, वो भी नहीं हो पाई। कहीं मुस्तहकों की मदद की बात कर रहे हैं आप? जी बेशक, क्योंकि उर्स का यहाँ पे खर्चा गवर्नमेंट 20 लाख रुपए हर साल दिया करती है। इस बार आई नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस बार के उर्स के खर्चा खर्चात बचाते हुए लोग जो कोविड में इंतकाल हुए हैं, लोगों को जो राशन पानी के लिए घरों में लिए जो फुलसी है और परेशानियां हैं, चाहते तो यहाँ से कर सकते थे। इदारा बहुत बड़ा है, यानी कि कर्नाटक नहीं हिंदुस्तान के अंदर का सबसे बड़ा अमीर इदारा कहता हूँ, जिसमें अंदर लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद शहीद आज़म की आर्कियोलॉजिकल और वफ़ के अंदर दर्ज है। मुझे पता नहीं इसका मामला क्या है करके, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक़ से मैं सीओ साहब को और तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को लेटर भी लिखूंगा। यहाँ तक इंशाल्लाह हो सके तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल को भी मैं इस लेटर को जारी कर आने वाले उर्स के अंदर सिर्फ उर्स ना हो, लोगों के अंदर यहाँ पे गरीबों की सहूलत हो, गरीबों को तोहफा दिया जाए। कम से कम टीपू सुल्तान शहीद के नाम से आज के दिन उर्स के अंदर, जब टीपू सुल्तान एक एग्जाम्पल थे, कम से कम 25 शादियाँ हों और कम से कम बच्चों के कुछ गरीब बच्चों के हकीक़े हो, और यहाँ तक सुन्नत इब्राहिम के इंतजामात। उर्स का एक 3 दिन का यहाँ पे कोर्स चले करके मेरा ये डिमांड भी रहेगा। इंशाअल्लाह उसे मैं डिमांड को जारी भी करवाऊँगा, क्योंकि शहीद आज़म की मर्ज़ी है। शहीद आज़म के ख़ास नज़रों करम से बाकायदा इंशाअल्लाह हमारी तंजीम की तरफ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, शुक्रिया। जो आप मैसूर से संदल लाया करते थे, आज उसके मतलब वो कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? अफसोस हो रहा है? नहीं, ये कोरोना के इससे तो हमें भी चलना नसीब जी 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 क्या भी है, जी बीमारी खतरनाक बीमारी है जी उसके लिए तो दुआ करने शहीद करने जी जी, तुम्हें बचा लो हमारे। यानी आपने दुआ की वहाँ की? जी हाँ, तमाम इंसानों के लिए आपने दुआ की? तमाम पूरे भारत के वास्ते, जी जी ये बीमारी हटने के वास्ते, जी। दुआ के वास्ते आए। तो आज भी आप संदल लेकर आए थे ना? जी जरूर लेकर आते हैं। और चादर भी चढ़ाए आप? चादर जी, पूरा मीठे अच्छा पका को ये करने साले साल करते हैं, जी अब वो वक्त नहीं है बिल्कुल उसके वास्ते जी। ये मिठाई सा काम लेते हैं। अच्छा, ये 35 सालों का जो सिलसिला है, जी। आइंदा भी आप जारी रखिए इसे? आइंदा जिंदा रहकर जरूर करते हैं। जी और हमारे बच्चे भी रेडी हैं, बिल्कुल, ये दामन नहीं छोड़ो। यानी जो सिलसिला चला आ रहा है जी, वो जी। बाकी रहेंगे। जी जी बिल्कुल खुद के पैसे से जी किसी के न मन को करना बड़ी बात है, जी अपनी जाति मेहनत का लगाना जी बहुत बड़ी बात है। जी 5 साल से अल्लाह रसूल के बाद जी। शहीद की दुआएं हैं, जी। सब हमारी कमेटी का साथ। Luminous Mysuru is the news channel in India, and also subscribe our channel for latest updates.